हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। आज हम बात करने वाले हैं संजीव चौरसिया से, जिन्होंने एमपीसीजे का मेंस और इंटरव्यूज दोनों क्वालिफाई कर लिया है एंड नाउ ही हैज बिकम द जज इन मध्य प्रदेश। हाय संजीव, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ जुडिशरी गोल्ड। कैसे हैं आप? Ma'am, I am fine and thank you so much. बिल्कुल। कुछ अपने बारे में बताइए संजीव, सो दैट आवर ऑडियंस आल्सो नो यू। Yes, ma'am. Actually, I am from Mandla, Madhya Pradesh. I did my schooling from Mandla itself, and thereafter I did my graduation from Indore. And thereafter, after completing my graduation, I started preparing for judicial services. And this is my first attempt, and I am fortunate enough to secure the this feat in first attempt itself. Absolutely, it is a feat to attempt to achieve this in first attempt. There are so many people who keep on एक नंबर से आधे नंबर से वो stuck हो जाते हैं and they keep on giving the exam again and again. It's absolutely amazing that you have qualified it in your first attempt. So Sanjit, I remember, if you also remember, while we were preparing you for your mock interviews, do you remember I had said that अगर मेंस ठीक रहा तो फिर इंटरव्यू में तो तुमको कोई नहीं निकाल सकता. I was so impressed by the demeanor, by the politeness, by the in-depth knowledge of law. So everything that a person requires to for the other person to become a judge, everything was there. हर चीज, चाहे वो पोलाइटनेस हो, चाहे वो डिमीनर हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो घुमा के पूछा गया, कोई भी क्वेश्चन ऐसा जिससे कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, तो कंफ्यूज हुए बिना बिल्कुल सीधी सरल भाषा में आंसर दिया गया था मुझे. एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड. यूजुअली आई मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहती थी, बट विद यू आई वाज सो कॉन्फिडेंट दैट यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम, बिकॉज इतने अच्छे से अगर आप आंसर बता पा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपने उतने ही अच्छे से आंसर लिखे भी होंगे, उतनी ही सरल भाषा में, उतनी ही सिंप्लिसिटी के साथ आपने अपने आंसर लिखे भी होंगे. तो कुछ मेंस के बारे में बताइए कि मेंस कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था मेंस का, एंड कैसे आपने प्रिपेयर किया एंड ऑल. मैम, मेंस में सबसे जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज लगी वो होती है सिटिंग, बिकॉज देयर वर 4 पेपर्स इन 2 days. So people do fail to complete the whole of the fourth paper in a given time. So ma'am, my schedule was I usually wake up at 5 a.m. in the morning, and after doing my some work at 6 a.m. to 9 a.m. I used to sit for 3 hours continuously. I will do whatever I want, either to study or to write, but I will sit for 3 hours continuously. And thereafter, I take half an hour break, and then I continuously again sit for 3 hours. And after completing the first half of the day, I take a 1 hour break, and after that, I again go for the 3 hour sitting. And then after also taking a half-hour break, I go for the fourth sitting at night. So means I am doing four times sitting of 3 hours in a single day. So it would have been more easy for me to give a 4 time sitting in 2 days. So Exactly. that was my trick, and it do help me in the real examination, because I have a practice of a 4 time sitting in a single day. So it will be more easy for me to have a 4 time sitting in a 2 days. एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात है कि ये वाली चीज एक ऐसी चीज है जो कि हर एस्पिरेंट फेस करता ही है. अगर वो पहला अटेम्प्ट दे रहा है तो वो ये वाली मुश्किल को तो फेस करता ही है कि 6 घंटा पूरा दिन में बैठना और 6 घंटा बैठ के लिखना, उसमें हाथ भी दर्द होने लगते हैं, कमर दर्द होने लगती है. लोगों को इतना बैठने की आदत होती नहीं है, तो ये वाली चीज तो बहुत बिल्कुल ठीक बताई है आपने कि ये वाला इशू तो हर एस्पिरेंट, फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट फेस करता ही है. तो इसीलिए अच्छी चीज ये है कि आप इसको पहले से ही प्रैक्टिस में डालें. तो जैसे प्रीलिम्स हुआ था, तो जिस टाइम प्रीलिम्स हुआ था, क्या आप कॉन्फिडेंट थे कि आप वो प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर ही लोगे एंड यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस राइट आफ्टर, या फिर मेंस की ही तैयारी पहले से करी थी जिसका फायदा प्रीलिम्स में हो गया और उसी तैयारी को फिर आगे बढ़ाया? Ma'am, actually, to be very honest, I just prepared for 19 days for prelims, because, ma'am, on 27th of February, I was having my SEBI mains paper. So I was preparing since December 2020 to 28 February 2021 for SEBI. So on 1st March, when I came to my hometown, I started preparing for prelims. From 1st March to 19th of March, I have read for the prelims.
And after giving my prelims, I was very much confident that I will be scoring 120 plus. But I was confident, but I was not sure. So I just waited for some time to result to be get declared. But unfortunately, due to COVID condition, result got delayed. So after something around 20 to 25 days, I have started somewhat of my preparation, like seeing the previous year question papers, seeing the judgment paper, translation, etc. So basically that time, that delay that was there helped you to prepare better for मेंस एग्जामिनेशन, राइट? सो इतने, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि प्रीलिम्स के बाद मेंस बहुत टाइम में हुआ, मतलब ऐसा नहीं था कि 2 साल या 3 साल का डिफरेंस आ गया, इतना टाइम तो नहीं था। तो टाइम तो कम ही था। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 12 महीने, 10 से 12 महीने तो आपको लगते हैं अच्छे से प्रिपेयर करने में फॉर एनी एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, राइट? भले ही उसमें 10 सब्जेक्ट आते हो, 12 सब्जेक्ट आते हो, लेकिन उनको प्रिपेयर करने में इतना समय तो लगता है। तो फिर ये समय तो आपके पास जाहिर सी बात है थोड़ा कम था। यस मैम, बट मैंने मैम मेंस के लिए प्रीलिम्स से पहले नहीं पढ़ा था, मैंने हाँ। मेंस के प्रीलिम्स के बाद ही पढ़ा था। लेकिन जब मैंने मेंस के लिए स्टार्ट किया था, तो मैंने अपना 100% दे के इस चीज को कवर करने की कोशिश कर रही थी, तो एक चीज मुझे ऑल बताइए फोर पेपर। संजीव, एक चीज मुझे बताइए कि जब हम बात करते हैं इतना लॉन्ग आवर्स सिटिंग की, जब हम बात करते हैं इतना लॉन्ग आवर्स पढ़ने की, तो अगर मैं 10 महीने की बात कर रही हूँ तो वो 10 महीने की पढ़ाई आपने इन 4 5 6 महीनों में कर ली थी। यस मैम, मैक्सिमम ऑफ माय हाँ। स्टडी। हाँ, कि आप पूरे दिन में जितना टाइम आपको मिलता था उसमें ज्यादातर समय आप पढ़ते थे। तो ये यस जो डिसिप्लिन वाली बात है, ये डिसिप्लिन पहले से ही है लाइफ में, या फिर इस मैम, एग्जाम की वजह से लेकर आया गया था? I still remembers a day when I won't used to study for a 15 minutes in a day, and I still remember a day when I used to study for 15 hours in a day. मैम इट जस्ट डिपेंड ऑन अवर चॉइसेस। मुझे ऐसा था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, तो मैं फिर अपने आप को, बॉडी को इतना पुश करता था कि मैं अपना जितना वर्क है उससे मोर देन डेट डिसाइडेड अमाउंट ऑफ वर्क आई हैव टू डू, मैं उससे ज्यादा ही करता था उस दिन का तो वर्क करता ही था। उसके पहले जो मैंने पढ़ा उसका मैं रिवीजन भी करता था उस दिन, मतलब एक हम्म पर्टिकुलर डे में। क्योंकि प्रीलिम्स ऐसा है कि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट फैक्ट, मेंस इज हम्म। ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, एंड इंटरव्यू इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो क्योंकि क्या होता है, जब हम प्रीलिम्स भी पढ़ते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, लेकिन मेंस में क्या होता है, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अपने खुद के वर्ड्स में आर्टिकुलेट करके लिखना एक चैलेंज रहता है। हमको आता सब है, लेकिन हमको उस चीज को कैसे लिखना है और कितना लिखना है और उस पर्टिकुलर टाइम में लिखना है, वो एक आर्ट रहता है जो मेंस, मतलब मेंस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे मतलब वीडियोस भी देखे थे और बहुत सारी जगह से गाइडेंस भी लिया था। फिर एट द एंड मुझे यही पता चला कि यदि मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो मुझे ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसलिए ठीक फिर बात है। बिल्कुल ठीक बात है कि ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटरशिप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको सही कोई गाइडेंस करने के लिए मिल जाए, कोई सही गाइड करने के लिए मिल जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं होता। लेकिन गाइडेंस भी एक पॉइंट तक ही काम करता है, उसके बाद तो सिर्फ आपकी मेहनत रहती है। मेहनत और आपका थोड़ा लक भी, मैं कहूंगी लक भी तो थोड़ा थोड़ा तो रोल प्ले करता ही है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेहनत ज्यादा है तो फिर लक इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन कई कई केसेस में तो रहता है। सो संजीत, ये बताइए कि जैसे मेंस की तैयारी करने बैठ गए, तो इतना फोकस, इतना डिसिप्लिन के साथ जब आप पढ़ रहे थे, तो फिर इसका मतलब यही था कि पूरा एम सिर्फ जुडिशरी की तरफ ही था, राइट? यस तो क्या सोचा था, क्या इंस्पिरेशन थी, क्यों बनना था जज? मैम, जज बनने के तो बहुत ज्यादा मतलब लॉ स्कूल से ही मतलब रीजंस थे मेरे, लेकिन एक पर्सनल रीजन, इंस्पिरेशन मेरे मम्मी डैडी थे। मतलब एक उनके जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि उनके लिए मतलब कुछ चीज एक मतलब बेटे के रूप में मतलब मुझे करनी है। और जज मुझे एक ऐसा पर्सनली मतलब करियर चॉइस लगी। और बस मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन जितना भी हार्ड वर्क किया वो एक दिन में सारा रिकवर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अपने आप को डेली पुश करता था और मुझे ऐसे कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरे अंदर था कि मुझे करना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट का एक जो मजा रहता है, एक जो मतलब उस फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो स्टडी कर पाते हो वो और भी बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी होती है। तो मेरा बिल्कुल ऐसा ठीक था। बात कह रहे हो आप कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जितना अच्छे से पढ़ते हो, उसके बाद बाकी सब टाइम पे फिर आप रिवाइज ही करते हो।
इतना डेप्थ में जाके आप सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट टाइम में ही पढ़ते हो, उसके बाद तो फिर रिवीजन रहता है कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था, वो तो मैंने पढ़ा था, आप ऐसे करके रिवाइज करते हो बाकी बार तो। मेरा एक और, मैंने एक चीज दिमाग में ये भी बैठा ली थी कि इस एग्जाम को क्वालिफाई तो करना है जज बनने के लिए, आज नहीं तो कल, तो क्यों ना इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लिया जाए। एटलीस्ट आई वुड हैव अनदर ईयर फॉर द अनदर थिंग्स एज वेल। मतलब हम्म, मुझे इस चीज में एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम ही देना था, क्योंकि मेरा ये था कि जब इस चीज को क्वालिफाई करना है तो आज ही कर लो। कल जितनी मेहनत करनी है वो इसी बार में सारी मेहनत कर लो एक बार में, तो फिर अपने को मतलब बाद में अपने पास दूसरी चीजें भी रहेंगी करने के लिए। सही बात है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 6 साल से 7 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कोई टाइम लिमिट बांधी नहीं है, वो सिर्फ बैठे हैं और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। ऐसे केसेस में कई बार ऐसा भी होता है कि जजेस ही आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि इतने टाइम से आप घर पे बैठे हो, इससे अच्छा आप कुछ काम कर लेते, घर वालों के लिए थोड़ा सपोर्ट बन जाते किसी तरह का। तो वो आई थिंक एक चीज तो सभी को करनी ही चाहिए। इसके अलावा जब इंटरव्यू हो रहा था, तब इंटरव्यू का क्या ऐसा एक्सपीरियंस कैसा था आपका? किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए, किस तरह से आपने तैयारी शुरू करी? मैम एक्चुअली इंटरव्यू में मेरा रूममेट था। हम्म। वी वर बोथ वर शेयरिंग अ रूम। सो हम्म। मैम वी टेंड टू डिस्कस अ लॉट अबाउट इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग व्हाट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. हम्म। So we used to discuss whole of the subject. For example, if we have wake up in the morning, if we go for a breakfast, then we will discuss whole IPC or CRPC while walking on the road. And हम्म। after that, these are my personal experiences that I have found to be very useful, because if you can speak a thing in front of your friend, then you will have at least that confidence to speak a thing in front of the interview panel as well. So these were my experiences. So I want to speak anything, any question. So I will go for a discussion, either with my roommate, either with my mentors, either with my friends or anyone, because in interview you cannot mug up a thing. In हम्म। interview, speaking is must, and speaking will come when you have read that thing by heart, not by your mind, and you have mug up that thing. And one more thing, I have done this, I have given many mocks. Means me and my roommate used to take each other mock every night. So that thing also helped me, and I have given mocks at every possible way which I can give. So that thing also helped me in my real interview. The panel was very much impressed by me. First, at the starting, they have asked me that you have done litigation, so tell me some cases about your litigation, what you have done. So I have tell them one case in that they have crossed me 2 3 questions, and again they have said tell some another case. So then I have told them, and they have also crossed me in that 2 3 questions, and then again they have said me to tell another case, one more case. So total 3 cases were asked to me according to me, which I have done in a litigation. And at the end, the Honorable Sir has given me the remark that Sanjeev ji, we are very much impressed by you, as you have already completed your law in 2020 and you are coming before here, and you are also practicing litigation. So I think that was a good, rewarding remark for me. From that, I have judged that my interview was fortunate enough. Absolutely, and even I would agree with the judges. I was जब हम इंटरव्यू लेते थे मॉक इंटरव्यूज, तो आई वाज द वन हु वाज अ बिट डिफिकल्ट टू प्लीज। मतलब वैसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ज्यादा लीनियंट रहूंगी किसी इंटरव्यूई के साथ, तो फिर उसका वहां का एक्सपीरियंस और यहाँ का एक्सपीरियंस वुडंट मैच, right? So I used to be a little more strict with the interviewees, but I was so impressed by your interview, and you're the only one जिसको मैंने ये कहा था कि तुम्हारा तो होना पक्का है तुम्हारा तो होगा, क्योंकि इतनी इतनी सरलता से जब आप अपनी आंसर करते हो, जब आप इतनी सरल भाषा में आप पूरी चीज बता देते हो, और जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। जो चीज नहीं आती थी आप बहुत पोलाइटली मना कर देते थे कि ये नहीं आता है, इस चीज पे मैं पढ़ूंगा। ऐसा भी नहीं कि नहीं आता और मुझे अब मुझे नहीं पता है इस बारे में। आप हमेशा ये कहते थे कि अगर नहीं आता है, कोई क्वेश्चन अगर नहीं बना, तो इस बारे में आई विल रीड अबाउट इट। सो दैट गिव्स एन अश्योरेंस टू द इंटरव्यूअर ऑल्सो। उन्हें भी ऐसा लगता है फिर कि
अच्छा इसको नहीं आता है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन उससे अच्छी बात ये है कि ही वांट्स टू लर्न अबाउट दैट. So that was a thing which really impressed me while taking your mock interview. So संजीत, प्रिपरेशन जब करी और इतना कम समय में प्रिपरेशन करना था, तो फिर कौन सी बुक से पढ़ना है, किसके नोट्स पढ़ना है, नोट्स बनाने का टाइम क्या, ये सारा समय था आपके पास? मैम तीनों स्टेज की अलग अलग प्रिपरेशन हुई है, प्री हाँ. मेंस और इंटरव्यू। प्री की जो मेरी प्रिपरेशन थी वो तो मैंने इंडेक्स बेस करी थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 19 डेज थे। तो मतलब जो भी मतलब मैं क्या करता था, सिर्फ इंडेक्स को डेली रिवाइज करता था, और जो भी इंडेक्स में इंपॉर्टेंट चीज रहती थी सेक्शन के अंदर, मैं उस चीज को बाहर लेके इंडेक्स में लिख लेता था, कि मतलब मैं किसी भी चीज में कंफ्यूज ना हूँ और वो मेरे माइंड से स्लिप ना हो। तो मैं हम्म. डेली इंडेक्स से रिवाइज करने का फायदा ये होता था कि मुझे एक तो सेक्शन नंबर मतलब बहुत अच्छे से याद हो जाते थे, और उसके बाद उसके अंदर जो चीज है, जैसे किसी में कोई टाइम लिमिट दी है या फिर किसी में कोई नोटिस का पीरियड दिया हुआ है, तो वो भी याद हो जाता था। और कॉन्सेप्ट तो मेरे क्लियर ही थे, क्योंकि मैंने पहले से इसकी प्रिपरेशन करी थी। और प्री के बाद मेंस में क्या होता है कि जजमेंट का जो पेपर रहता है, उसको अपने आप को टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर पाना ही मतलब एक अपने आप में चैलेंज रहता। तो मैंने उसकी प्रैक्टिस बहुत करी थी, कि मतलब मैं टाइम लगा लगा के मतलब अपने स्टॉप वॉच को, कि मतलब मैं कितनी देर में जजमेंट कंप्लीट कर पा रहा हूँ अपना। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी, मतलब कि जिस मूवमेंट मैंने लास्ट वर्ड लिखा था पेपर, रियल पेपर में, उसी मूवमेंट में मैम जो थी वहां पर उन्होंने मेरी कॉपी ले ली थी। मतलब यदि मेरा 2-3 वर्ड छूट जाते तो उसमें मेरे फॉर्मेट के नंबर में भी डिडक्ट हो सकते थे। हाँ, हाँ. और जो पेपर 1 और 3 जो लॉ के होते हैं मेंस में, उसमें तो मैंने क्या किया था, मेरे नोट्स थे, मैंने कुछ गाइड्स की बुक्स रेफर करी थी, और जो मेरे पास ऑनलाइन मटेरियल था मैंने सबको सम अप करके, जैसे कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो मैंने उनके एक पर्टिकुलर टॉपिक्स बना लिए थे, कि यदि इससे ये पूछेगा तो मुझे ये लिखना। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज, तो मुझे फंडामेंटल ड्यूटीज में 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना है, कि किस कहाँ पे वो दी गई है, वो आर्टिकल नंबर लिखना है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो लिखना है, फिर जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये रिकमेंड किया है, ड्यूटी टू पे टैक्स, ड्यूटी टू वोट, ये सब भी ऐड हो जाएंगे यदि फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो इट विल मेक मोर फंडामेंटल ड्यूज ब्यूटीफुल। मतलब एक कंक्लूडिंग में 3 लाइन लिखते, ये मैंने एक सिनॉप्सिस अपने नोट्स में बना लिया था। मैंने क्या किया था, 2 मैंने बड़े बड़े रजिस्टर खरीद के लाया था, 500 पेज के अप्रॉक्स। उसमें मैंने फर्स्ट रजिस्टर में पूरा पेपर 1 लिख दिया था लाइन से, कि मुझे बार बार रिवीजन करने के लिए कहीं और ना जाना पड़े। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो पेपर 1 होता है उसके सारी चीजें लिख दी। जो दूसरा रजिस्टर था उसमें मैंने क्रिमिनल लॉ का सारी चीजें लिख दी थी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कि मतलब ये टॉपिक से पूछ सकते हैं, और ये टॉपिक से पूछेंगे तो मुझे ये सिनॉप्सिस है मेरा, और यदि कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ रहता था तो मैं उस चीज को उसमें एड ऑन कर देता था। तो इससे ये होता था कि जब एग्जाम के अ वीक बिफोर मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ मैं अपने नोट्स उठाता था 2, और मैं सारों को रिवाइज कर लेता था, तो उससे मेरे पेपर 1 और पेपर 3 बहुत अच्छे से कवर हो गए। और जो पेपर 2 है, जो अपन ट्रांसलेशन का पेपर, उसमें मैं क्या किया था कि जो बेयर एक्ट है उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उनकी मैंने वोकैब प्रिपेयर कर ली थी, क्योंकि ट्रांसलेशन में मेन वोकैब का ही मतलब रोल प्ले करता है। क्योंकि बेसिक सेंटेंस को तो हम इजीली ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन जो मेन वोकैब लिखी है, जैसे स्टॉपल है उसको विबंध बोलते हैं, तो ये चीज इंडेक्स में मतलब लिखी हुई, तो मैंने एक वोकैब बना ली थी एवरी सब्जेक्ट की, तो मैं वो वोकैब को रिवाइज करता था। और प्रेसी राइटिंग उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि टफ आती है, वो बहुत ईजी रहती है। आप 2-3 बार प्रेसीज को यदि पढ़ोगे तो उसमें खुद समझ में जाता है कि एक मेन थीम क्या है, कोर थीम क्या है। बस वो स्कोर थीम के थ्रू आपको बहुत मतलब 1/3 लेंथ में उसको लिखना रहता है। और अपने आर्टिकल राइटिंग के लिए मेरी हैबिट में था न्यूज़पेपर पढ़ना, तो मुझे उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं गई। मैंने उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करी, बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने दूसरी चीजों में टाइम देना ज्यादा प्रेफरेबल समझा, क्योंकि मुझे पता था कि आर्टिकल राइटिंग आई विल डू गुड इनफ टू सिक्योर अ गुड मार्क्स। हम्म. आर्टिकल राइटिंग के लिए भी, लेकिन अगर आप मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपका कॉन्फिडेंस आता ही वहीं से कि आप प्रिपेयर्ड हो लॉ सब्जेक्ट में, क्योंकि एक तो लीगल ऐसे ही आता है, जो हमारा एक लीगल आर्टिकल आता है, तो अगर आपने लॉ ठीक से पढ़ा हुआ है, अगर आप अपने बेसिक अवेयर हो लॉज के बारे में, तो आप एक ठीक ठाक डिसेंट सा आप एक आर्टिकल लिख सकते हो। और सोशल के बारे में भी आपकी खुद की ओपिनियन मैटर करती है वहां पे भी, तो उसके लिए भी कॉन्फिडेंस वहीं से आता है जब आप एजुकेटेड हो, जब आप नॉलेज हो, जब आपको नॉलेज है उन चीजों की जो अभी चल रही हैं, जो हो रही हैं, तभी आप एक अच्छा आर्टिकल लिख पाते हो, राइट? ट्रांसलेशन के ऊपर बहुत एक अच्छा पॉइंट आपने बताया कि आप हर सब्जेक्ट की अलग ग्लॉसरी बनाते थे. मैम एक कॉपी में सारे हाँ, सब्जेक्ट की मुश्किल से 3 पेज लगते हैं, एविडेंस के इंडेक्स की। हाँ, पूरे हाँ. उसकी नहीं, क्योंकि उतना टाइम में परमिट नहीं करता। इंडेक्स की एक कॉपी में
लिख लिए, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट की वो लिख लिए, क्योंकि कहीं ना वर्ड्स भी रिपीट होते हैं, जब हाँ। रिपीट होते हैं तो आपको मतलब वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये तो देखा था अपन ने। हम्म। हाँ, ये तो है। जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली, तो फिर तो मेंस के बाद, जैसे ही मेंस हुआ होगा तब भी आपका कॉन्फिडेंस तो होगा ही कि ये तो हो जाएगा क्लियर, है ना? एक विश्वास रहता है, लेकिन जब तक ऑन रिकॉर्ड नहीं आता तब तक कुछ, लेकिन अंदर से तो था कि हाँ कि अच्छा गया, जजमेंट का पेपर अच्छा गया। बस ये था कि पेपर 3 है वो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं गया है। क्रिमिनल लॉ वाला। क्रिमिनल लॉ में चेकिंग भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है इनफैक्ट, राइट? Yes. मुझे ये बताइए कि घर वालों का क्या रोल रहा पूरी प्रिपरेशन जर्नी में, मतलब किस तरह का सपोर्ट मिला, किस तरह से मोटिवेशन, गाइडेंस, क्या बैकग्राउंड बताइए थोड़ा, कि क्या घर में कोई ऑलरेडी है जज, या फिर कोई लॉयर, एडवोकेट, एनीबडी जिसने थोड़ा पुश किया, जिसने साथ दिया? मैम एडवोकेट और जज तो कोई भी नहीं है, आई एम फर्स्ट जनरेशन ऑफ इन लीगल फील्ड। सो मैम घर वालों का तो सबसे बड़ा रोल हुआ है मेरे इस सक्सेस जर्नी में। बिकॉज मैम मैं जब कोविड के टाइम में अपना इंदौर से वापस अपने होम टाउन आया था मंडला, तो एक्चुअल में मैं अपने घर में मतलब मुझे घर में सूटेबल एक इन्वायरमेंट मिल नहीं रहा था मतलब स्टडी का वहाँ हम्म। पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 मंथ वहाँ पे रह के देख चुका था। तो फिर मतलब मैंने मेरे डैडी से बात करी, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर रूम विथ इन सेम सिटी मुझे अलॉट करवा दिया था। तो मैं इस रूम में अकेले रह के पढ़ता था, मैं सिर्फ अपने घर जाता था लंच के लिए और डिनर के लिए। और इवन जब मेंस के 1 मंथ बिफोर मैं लंच के लिए जाता था, और लंच के लिए मैं अपना डिनर पैक करा के ले आता था। मतलब मैं शाम को वही खाना खा के सो जाता था, या फिर कई बार डैडी मतलब वो शाम का डिनर मेरे लिए लेके आते थे। तो मतलब कुछ ऐसे भी दिन आए हैं कि मैं 2-2 दिन तक घर वालों से नहीं मिल रहा हूँ, मतलब एक ही रूम में बंद रह के, कि मतलब मैं यहाँ पे स्टडी करता था। और मतलब उस समय घर वालों के लिए भी ये चैलेंजिंग था, क्योंकि बहुत सारे लोग घर वालों को भी बोल रहे थे कि एक ही सिटी में के अलग ऐसे क्यों रहता है वो, बिकॉज नो वन नोज अबाउट व्हाट आई एम डूइंग इनसाइड अ सिंगल रूम। बट हम्म। ये था कि उतना मेरे घर वालों का मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था, और एक भरोसा था कि हाँ कि मतलब मैं यहाँ हूँ तो मैं कुछ करने के लिए ही यहाँ पे मतलब कर रहा हूँ, मतलब अलग रह रहा हूँ घर से। हम्म। तो इतनी इतने स्ट्रगल्स जो आपने लिए, घर वालों ने भी लिए, क्योंकि ये चीज आसान नहीं होती है। कहने के लिए तो लगता है कि घर वालों ने रूम दिलवा दिया तो उसमें बड़ी बात क्या है, लेकिन सोसाइटी में रह के एक ही शहर में अगर बेटा अलग रह रहा है और पढ़ने के लिए अलग रह रहा है, तो फिर पेरेंट्स से भी क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं कि ऐसा क्या कर रहा है, उसको घर में ही एक अलग कमरा दे दो ना, क्या इतना दूर रख के रखा है, और उसका भी मन नहीं लगता होगा, और बहुत सारी चीजें पेरेंट्स को तो सुनने में मिल रही होगी। लेकिन एक बार जब ये सारे स्ट्रगल्स खत्म हो गए, जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया, तब बताइए मुझे घर में क्या माहौल था, क्या आपका क्या एक्सपीरियंस था जब मैम, इंटरव्यू का रिजल्ट आया? मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी अपने मम्मी पापा को देख के हुई थी, कि मतलब जितना मैं खुश था उससे कई गुना ज्यादा वो खुश थे, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने करी है उससे कई गुना ज्यादा उनने करी है, जितनी एक्सपेक्टेशंस मुझे थी इस पर्टिकुलर जॉब से उससे कई गुना ज्यादा उनको थी। और उन्होंने मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे मतलब ट्रस्ट किया था मुझ पे, कि हाँ कि मतलब मैं इंदौर में भी रह रहा हूँ और फिर यहाँ पे भी रह रहा हूँ, एक सेम सिटी के अंदर में थे। तो उनका जो एक सपना था वो पूरा हो गया था। मेरे लिए तो ये चीज थी कि सिर्फ मेरे लिए एक एग्जाम था, क्वालिफाई करना था, एक पर्टिकुलर जॉब में अपना करियर बनाना था। लेकिन उनके लिए तो ये था कि उनको अपने बेटे को कुछ बनाना था। सही बात है। तो तो उनके उनका एक्सप्रेशन देख के माय हैप्पीनेस वुड हैव गॉट ट्रिपल फोर। ये बताओ संजीत मुझे कि इतना रिगरस तुम्हारा ये जो था पूरा स्केड्यूल, जितना तुमने खुद के लिए रिगरस बना लिया था, इस टाइम पे हाउ डिड यू कीप योर मेंटल पीस? क्योंकि इस टाइम पे अगर आप इतना लग के पढ़ रहे हो, 14-14, 15-15 घंटे अगर आप बैठ के सिटिंग दे रहे हो, पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी वो एक एलिमेंट तो आ ही जाता है जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही। तो उस टाइम पे फिर हाउ डिड यू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर माइंड एंड द बॉडी? मैम मैं जब प्रिपरेशन करता तो मुझे तो ये सब चीजों का टाइम ही नहीं मिलता था, कि डिप्रेशन की मतलब स्ट्रेस, मैं मतलब इतना ज्यादा मतलब इंडल्ज हो जाता था उस चीज में कि मुझे पता नहीं चलता था कि कब सुबह से शाम हो गई है। मतलब मेरा बस यही था कि इस डेट में पेपर है, इस डेट तक ये सारी चीजें करनी। मतलब मुझे आज तक ये कभी मतलब स्ट्रेस वाला फैक्टर फील नहीं हुआ। और जो 15 घंटे वो मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ कि 15 घंटे मैंने स्टडी कर ली है। मतलब वो ऑटोमेटिक सारी चीजें होती थी। जब मैं रात में भी सोता था तो कई बार ऐसे भी डेज आए हैं कि मतलब ऑटोमेटिक नींद में भी रिवीजन चल रहा है। मतलब वो
हाँ, वो ऑटोमेटिक सारी चीजें मतलब माइंड में प्रोग्राम हो जाती थी, और उस चीज के लिए मुझे बिल्कुल भी लोड नहीं था, क्योंकि मुझे पता था, मैंने एक चीज माइंड में बना ली थी कि मुझे निकालना तो है, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो मैं इस चीज को 1 साल से ज्यादा तो नहीं दे सकता हूँ। तो हम्म। ऑटोमेटिक मेरा माइंड ऐसा प्रिपेयर हो गया था कि मुझे स्ट्रेस कभी महसूस नहीं हुआ, कि मुझे कभी भी टेंशन नहीं हुई कि मैं 15-15 घंटे पढ़ रहा हूँ, कि मतलब मैं यहाँ पे एक रूम में बंद हूँ, क्या होगा, मतलब रिजल्ट क्या होगा। मेरा बस ये था कि मुझे अपना मतलब अपनी प्रिपरेशन और अपनी मतलब जो मैं यहाँ पे कर्म कर रहा हूँ वो मुझे 100% देना है। बिकॉज फिर जब अपन अपना 100% देंगे देन ओनली द रिजल्ट विल कम 100%। बात तो बिल्कुल ठीक बोली यार। पूरे इस कॉन्वर्सेशन के बाद आई चेंज माई स्टैंड। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि लक फैक्टर थोड़ा बहुत तो होता है, आई एम चेंजिंग माई स्टैंड कि अगर इतनी मेहनत करी है तो फिर लक तो है ही साथ में, फिर तो लक का कोई रोल नहीं है। अगर इतनी मेहनत, इतनी लक की अगर आपने पढ़ाई करी है तो फिर लक क्या कर लेगा? फिर तो इट्स 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 इम्पॉसिबल कि अब लक भी आपको रोक पाए इतनी मेहनत मैम करने के बाद। इसमें ऐसा होता है कि इफ यू हैव डन जस्टिस टू योर सेल्फ देन द गॉड विल डू जस्टिस टू यू, because ultimately the god is the sole energy to give you the energy, because god is also seeing what things you are doing. So my only thing was that I have an interest in spirituality, so I my only current norm was that अपने कर्म करो, फल ऊपर वाला देगा। यदि आपने कर्म सही दिशा में सही जगह पे सही टाइम पे किए हैं तो ऊपर वाला आपको फल से वंचित नहीं करेगा, वो फल लेना उसका काम है, वो देगा यदि आपकी मेहनत सही दिशा में हुई है। लेकिन पहले मेहनत उसके बाद फल, और कभी भी जरूरी नहीं है कि आपको फल तुरंत मिले, हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन यदि आपकी मेहनत आपने करी है तो वो आपके साथ न्याय करने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। मेहनत और पढ़ाई या फिर किसी भी चीज का ज्ञान तो कभी व्यर्थ होता ही नहीं है। अगर यहाँ नहीं तो वो कहीं और काम आएगा, लेकिन काम बेशक आएगा, काम तो जरूर आएगा। तो संजीत, बस लास्ट में एक कुछ कोई एडवाइस फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी प्रीलिम्स हुआ है फॉर मध्य प्रदेश, उनके लिए कुछ वर्ड ऑफ एडवाइस इफ यू हैव। यस मैम। मैम सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एट वॉट एवर स्टेज दे आर, सबसे पहले तो उनको अपना एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। मतलब एक इंटरनल डिसिप्लिन होना चाहिए कि मतलब उनको करना है तो उनको किसी वीडियो या फिर किसी और सेकेंडरी चैनल के थ्रू मोटिवेशन ना हो, वो अंदर से एक इंस्पिरेशन आना चाहिए। क्योंकि जब कोई चीज अंदर से आती है ना तो फिर आपको घंटों भी निकल जाएंगे तो आप वो चीज से बोर नहीं होंगे। लेकिन यदि आपको किसी ने मोटिवेट किया या फिर वो एक्सटर्नल है तो 2 घंटे में आप बोर हो जाओगे, है। और दूसरी चीज ये कि एक प्रॉपर शेड्यूल बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने शेड्यूल बना लिया कि आप एवरेज पढ़ोगे 6 से 7 घंटे तो वो भी बहुत सही है, लेकिन वो होने चाहिए एवरेज 6 से 7 घंटे। और थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द गुड कंपनी, बिकॉज मैं मुझे याद है कि मैं इंटरव्यू में भी डिस्कस करता था, और जजमेंट के पेपर के समय में मेरे पास कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जिनसे हम लोग जजमेंट एक्सचेंज करते थे। तो उससे क्या होता था कि मुझे भी बहुत सारे नए नए जजमेंट रीड करने को मिलते थे, नए नए आइडियाज मिलते थे, नई नई लैंग्वेज मिलती थी कि कैसे मतलब किस चीज को लिखना है। तो गुड कंपनी ऑफ पीपल इज मोस्ट एसेंशियल, बिकॉज if you get indulged into any difficulty, some people would be there to save you. For example, if you have any particular basic kind of a doubt, you cannot go and ask directly to your sir or ma'am because they are also busy. So a friend can help you to get out from that situation. Good company is most essential part of this journey. And the fourth thing is about practice gratitude, because if you practice a gratitude, it will give you a sense of pleasure inside your soul. So these are my grand norms which I have followed. And daily I used to visit a temple, not because just I want to be qualify this judicial service exam. I visit because to get my peace of mind and to get the energy to do my preparation. So it was such a good conversation we had, and thank you so much for coming to Judiciary Gold and sharing all these words of wisdom with us. And I'm sure कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग जो अभी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। उनको भी लगेगा कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक्चुअली 100% पुट इन करना चाह रहे हो तो फिर
टाइम डज नॉट मैटर। वो जो बार बार कहा जाता है कि 10 10 महीने 12 महीने तो तैयारी करने में लगेगा, शायद वो टाइम भी इतना समय आपको ना लगे टू क्लियर दिस एग्जाम। Thank you so much, Sanjit, for coming to Judiciary Gold for this interview. And I hope and I wish कि आपके आगे के सारे फ्यूचर एंडेवर्स इतने ही सक्सेसफुल हो गए और आप इस सोसाइटी को एक बहुत अच्छा जज बन के दिखाएंगे। Yes, ma'am. Thank you so much for calling. थैंक यू सर।